I guess Aishan was also there. No worries. Can you guys hear me properly? Is there any disruptions or anything? Okay, thank you. So let's directly come back to the topic that we will be discussing today. So as of now, we have learned a lot of things. For example, in supervised learning, and in the yesterday's class, we have learned like how the what was we doing recommendation model was working. Okay, so in this look, whenever we are talking about a recommendation model, it's not like it is based on supervisor, unsupervised, or reinforcement. It's a combination of supervised, unsupervised, and reinforcement. How it's a combination? Like obviously, there were labels that we were using, so obviously it is somehow somewhere supervised learning was there. Okay, but there were some cases when we were getting the number of repeated words. For example, we were removing the action, like remove the action or anything that is repeated, any word that is repeated. Somehow it is under unsupervised learning. How? So that we will be getting information in today's topic. Okay. Now, so put the code. Okay. Okay, so let's take this topic dimensionality reduction. Yani, what we will be doing, we will be having some data sets. Okay, and the try for us, like what will be our motive bolo ya fir target. What will be our target? Our target will be in this algorithm to reduce the number of features. ठीक है, अब फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फीचर्स एक वर्ड भी हो सकते हैं, या फिर फीचर एक नंबर भी हो सकता है, कुछ भी. एज ऑफ नाउ वी कॉलिंग देम अ फीचर. सो what is inside a dimensionality reduction? What we are targeting? We are targeting algorithm. We're trying to find an algorithm, or we're trying to find some formulas that will be helping us to reduce the number of features. Okay, whatever data set we will be having. But this is the first target, that we are having some data set and we have to remove some features. The second target will be we have to preserve as much as meaningful information. For example, ऐसा नहीं है कि हमने एक डेटा सेट लिया कोई पिक्चर का और उसमें हमने यही हटा दिया कि वो पिक्चर का साइज कितना था. ठीक है, अगेन अगर हम पिक्चर रिडक्शन की बात करें तो वी विल ट्राई टू प्रिजर्व मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. And again, we have to identify what is meaningful information, and we have to identify what is information which we can reduce and it will not impact our data set that much. We cannot say it will not completely impact our data set. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. But we have to prioritize the things, and that thing will be from our side. We have to give that input to the algorithm, that what is the priority for us. Okay, now in this dimensionality reduction, what we will be giving an input that will be our high dimensional data. High dimensional data मतलब कि उसमें बहुत सारे रोज होंगे. अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करूँ, कॉलम होंगे, एंड जो डेटा होगा वो क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स होगा. बट अब कई बार हमारे पास जब ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, तब हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है ना, उसमें से काम की चीज़ रखें, बाकी फालतू की चीज़ निकाल दें. ठीक है, और या फिर जो ओवरफिट हो रहा है, या फिर हमारा जैसे कि मॉडल का साइज के ऊपर जा रहा है, तो वो भी हम निकाल दें. वो सब किसके थ्रू होगा? इसी डायमेंशनलिटी रिडक्शन के थ्रू. ठीक है, नाउ कि एक्स के मतलब अगेन वही क्वेश्चन जो होता है कि व्हाई डू वी नीड डायमेंशनलिटी रिडक्शन. पहला तो है कि हाई डायमेंशनल डेटा होता है हमारे पास, और हमें जो ओवर इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करनी होती है? निकालनी होती है. बट उससे फ़ायदा क्या होता है? यही टॉपिक पे अब 4 पॉइंट में अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो पहला मैं बोलूँगा कि कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जाती है. कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है हमारे हार्डवेयर की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी. क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ लाइक डिपेंडिंग ऑन कंप्लीटली हार्डवेयर, कि आपका चिपसेट कौन सा है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, आप मेमोरी कौन सी यूज़ कर रहे हो. ठीक है, सो दैट विल बी इंक्रीजिंग
if you will be reducing the data which is not that much meaningful for our project. ठीक है, तो पहला तो हो गया कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी जो हट जाती है। दूसरा एक ये होता है कि जितना कम डेटा आपके पास होगा, द लेस द डेटा द मोर यू कैन विजुलाइज। क्योंकि अगर आपके पास डेटा कम है तो मैं अपने डेटा सेट को देख सकता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं और कंफ्यूजन कम हो जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं बेटर विजुलाइजेशन, कि अगर मेरे पास 3 डायमेंशन से ज़्यादा का डेटा हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू आस्क, लेट मी कम बैक टू द डिस्प्ले। इफ आई हैव टू आस्क कि 3 डायमेंशनल डेटा के बाद अगर मैं 4 डायमेंशनल डेटा की बात कर रहा हूँ तो 4D डेटा मतलब क्या? 4D डेटा में क्या आएगा कि नॉर्मल डायमेंशन होती है एक्स वाई जी, फोर्थ डायमेंशन होती है टाइम। डेटा में 4 डायमेंशन क्या होता है? 4D डेटा का मतलब क्या होगा? एनी गेस? बोलो भाई। कि 2D डेटा हो गया, 3D डेटा हो गया, बट फोर्थ डायमेंशनल और फिफ्थ डायमेंशनल डेटा का मतलब क्या है? अच्छा, डेटा में डायमेंशन का मतलब क्या है? इतने दिन से हम लोग डेटा 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 कर रहे हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन इन अ डेटा? आप लोग को क्या समझ आया था कि ये अच्छा डेटा सेट है जिसकी डायमेंशन, तो अगर मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ 2 डायमेंशन है तो उसमें क्या रिलेशन है? अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू वाई 2 डायमेंशनल डेटा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई के आउटपुट्स, इनपुट्स नहीं आउटपुट्स। बोलो अफराज और सिमरत, आप दोनों फंस गए क्योंकि आज आप ही 2 लोग हो। कि डायमेंशनलिटी से क्या मतलब? रिपीट? क्या रिपीट? क्वेश्चन रिपीट? इंटरनेट प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, आई श्योर, क्योंकि आज तो मैंने वाईफाई रखा है। हाँ, फिर ठीक है, वरना मुझे लगता है पैसे बर्बाद। व्हाट आई वाज सेइंग कि what is the meaning of fourth dimension of the data? For example, if we are saying that any data which we have a 2D data or 3D data. Sumanyu is very consistent. Let me talk to Sumanyu first. Sumanyu, can you hear me? Sumanyu, can you hear me? कल या फिर परसों वाली क्लास में मैं आपको बहुत टाइम बुलाया बट आप आए नहीं, सुन नहीं रहे थे। आर यू देयर राइट नाउ? हेलो सुमन्यू, आपने कोई बॉट बनाया है कि ऑटोमेटिकली क्लास ज्वाइन करने के बाद लीव कर दो? अरे यार, चैट वैट कहीं तो रिप्लाई कर दो। आर यू देयर? इसने पक्का बॉट बनाया। लुक, सो हाँ सिमरत, मैं क्या बोल रहा था कि इन केस अगर मैं डेटा में डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो डेटा में डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ये लो लीव भी कर गया। कैटेगरीज और एट्रीब्यूट्स। अगर मैं एक एरे की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल एरे के बाद अगर फोर्थ डायमेंशन ऑफ एरे की बात करूंगा तो क्या होगा? हमने करा है यार ये, याद करो। पांडास में हम कर रहे थे 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे। लुक, whenever we're talking about multi-dimensional data, either you're right के attributes हो सकते हैं, categories हो सकती हैं, या फिर वो डेटा सेट ही एक डेटा सेट, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक ब्रैकेट फिर उस ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट और ब्रैकेट, तो ऐसे ना। हाँ, लेयर्स, मैं ब्रैकेट्स बोल रहा था, गुड वर्ड, लेयर। तो लेयर्स बढ़ती जाती है तो उसको हम 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल जितनी भी डायमेंशन बनानी है बनाते जाओ। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा। बट उस डायमेंशनलिटी को जब हम रिड्यूस करने जाते हैं तब हम किसकी बात करते हैं? एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, तो क्यों करते हैं हम? बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट नंबर ऑफ लेयर्स जितनी भी इंक्रीज होते जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ फीचर्स जितने इंक्रीज होते जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने इंक्रीज होते जाएंगे, जो हमारा डेटा होगा। वन सेकेंड।
सो डायमेंशनलिटी की बात करें, जैसे कि अगर मान लो जैसे जैसे मैं डायमेंशन बढ़ाता जा रहा हूँ डेटा की, देन व्हाट विल हैपन, हमारे जितने फीचर्स हम इंक्रीज होंगे, फीचर्स इंक्रीज होंगे मतलब क्या, वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे, या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वर्ड्स होंगे, या जो भी डिपेंड करता है कि हमारा डेटा सेट किस पे ओरिएंटेड है, वो इंक्रीज होते जाएंगे। एंड जितना अच्छा हमारा मॉडल होता है, मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मॉडल वो एकदम परफेक्ट बने, तो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट विल बी नीडेड फॉर अ गुड मॉडल, वो क्या होगा, ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो कि हर डायमेंशन, हर एक लेयर के लिए अब मुझे डेटा ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 लेयर थी, तो चारों लेयर के लिए मेरे पास ज़्यादा, एक लेयर के लिए 100 100 का डेटा था, या 200 का डेटा था, या 300 का था। अब मेरे पास 5 लेयर होंगी, तो उन 5वीं लेयर के लिए भी तो डेटा चाहिए ना। 6th लेयर होगी तो 6th के लिए भी डेटा चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फीचर बढ़ जाएगा, एक वेरिएबल बढ़ जाएगा, तो उस वेरिएबल के लिए कुछ हमें चाहिए ना डेटा। उस वेरिएबल में है क्या, मान लो एक कॉलम ही बढ़ गया, तो उस कॉलम में डेटा क्या है, वो भी तो चाहिए। So, what will be increased? The data will be increased for creating a good model. कि मतलब अगर पहले मुझे 4D में 2 GB डेटा लग रहा था, तो 5D में 20 GB लगेगा। एंड एक्सपोनेंशियली होता है इसमें, ऐसा मत समझना कि अगर 4D में, मतलब अगर कोई गैस करने के लिए भी बोले कि 4D में अगर मान लो 2 GB डेटा लग रहा है, 5D में कितना लगेगा, 3 GB नहीं लगेगा, 5D में लगेगा 2 to the power 4, ऐसा समझ लो। या फिर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से कम तो बोलना ही नहीं है एक अच्छे मॉडल के लिए। बनाने को तो 2 GB में भी बन जाएगा वो मॉडल, बट एक अच्छे मॉडल के एटलीस्ट आपको एक वेरिएबल बढ़ाने के बाद 10 टाइम्स का डेटा तो चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली डेटा इंक्रीज हो जाता है एक लेयर बढ़ने के बाद, या फिर एक डायमेंशन बढ़ने के बाद, या फिर एक फीचर बढ़ने के बाद, या फिर एक वेरिएबल बढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि पहला तो हमें इसमें जो इफिशियंसी होती है हार्डवेयर की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे लेयर कम होगी। और दूसरा कि जो साइज होता है डेटा का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जैसे लेयर कम हो जाती है। और दूसरा एक और था कि विजुअलाइजेशन और बढ़ जाता है। बस ये होता है इसमें कि अगर आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन करोगे तो क्या क्या फीचर्स आएंगे ना। अब जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, इसको करने के लिए ना बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अप टू अस हाउ वी वांट टू रिड्यूस द डेटा। बट जो मेजर टाइप होते हैं उसमें पहला एक होता है हमारे पास फीचर सिलेक्शन, और दूसरा होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। सिलेक्शन, पहली बात आपको फीचर का मतलब पहले क्लियर हो गया कि नहीं, कि वेरिएबल और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो हमारे फीचर होते हैं, उनको फीचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पहला मेथड आएगा फीचर सिलेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होंगे हमारे पास, the most important features we will be keeping them this side, and now irrelevant जितने भी होंगे उनको हम करेंगे तो बाहर जाओ। That is our feature selection, that select the most important features and remove the irrelevant features। ठीक है, अब फीचर सिलेक्शन के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक होता है वेरिएंस थ्रेशोल्ड। वेरिएंस थ्रेशोल्ड मतलब कि मैं देखूंगा कि मेरा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, कि ए 5 बार आया, बी 6 बार आया, तो ऐसे करूंगा। और आपको जो के मीन निकाल रहे थे, तो उसमें भी हम एक मेथड होता है कि उसी को के मीन को यूज करके सेलेक्ट द बेस्ट के, या फिर इसको बोलते हैं पता नहीं क्यों सेलेक्ट के बेस्ट, कि जिसमें से हमें बेस्ट के वैल्यू उसकी फाइंड करनी होती है, बाकी सारे डेटा को निकाल देते हैं। जितने की वैल्यू हमारे पास हम खुद डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक तो वो हो गया। और दूसरा होता है इसमें जो ज़्यादातर मॉडल्स में हम इंडस्ट्रियली यूज करते हैं, वो होता है आरएफई। आरएफई मतलब रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। जितना भी रिकरिंग फीचर्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला एक मेथड क्या होता है इसमें फीचर सिलेक्शन में, कि वेरिएंस थ्रेशोल्ड, वेरिएंस के थ्रेशोल्ड आप डिफाइन करते तो बाकी सारा डेटा बाहर आ जाता है। के मीन के तरह जो हम के वैल्यूज निकालते थे उसमें से बेस्ट के वैल्यू डिफाइन करते हैं, उसके बाद सारा निकाल देते हैं। तीसरा और लास्ट और मोस्ट यूज होता है आरएफई, जिसमें हम रिकर्सिव जो डेटा होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके अंडर आए, फीचर सिलेक्शन के अंडर। अब फीचर सिलेक्शन के बाद जो हमारा दूसरा था वो क्या था, फीचर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, कि जो डेटा था हमारा मान लो 100 का, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ न्यू फीचर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग डेटा।
100 में से ये 50 को अलग निकाल लेगा और उसको एक नया फीचर बना देगा। 50 का डेटा मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 50 फीचर्स नहीं। दो, एक डेटा सेट था, उसमें हमारी वैल्यूज थी 100, ठीक है। उस डेटा सेट में से ये डिवाइड करेगा दो में और उसको क्या करेगा, अलग अलग फीचर बना देगा। तो हमने क्या किया कि एक फीचर में हमें, क्योंकि देखो अब जो इसका रीजन क्या है कि हम 100 को दो में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो मैं एक्सपोनेंशियलिटी की बात कर रहा था कि ऐसा समझो 100 को आपने रखा 50 + 50, मान लो कि 100 के लिए आपको जो डेटा रिक्वायर्ड था वो था 4 GB, ठीक है। या फिर 50 के लिए ले लो, 50 के लिए रिक्वायर्ड डेटा है 4 GB, 50 फीचर्स के लिए या फिर 5 फीचर्स के लिए या फिर एक फीचर के लिए 2 GB या 10 GB, क्या लिया 10 GB, चलो 10 GB लिया। एक फीचर के लिए 10 GB डेटा रिक्वायर्ड है। दो फीचर के लिए अगर वो दोनों अलग अलग फीचर है, यानी कि एक ही डायमेंशन में 1D + 1D, 2D नहीं, 1D + 1D, तो जो पूरा आएगा वो क्या आएगा, 1D ही आएगा आउटपुट में, 2D नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 GB + 10 GB, 20 GB डेटा रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होगा कि 10 GB की पावर 10 GB, 100 GB डेटा रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि डायमेंशन बढ़ाते हो ना, 1D से 2D करते हो तब आपको एक्सपोनेंशियली डेटा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अब दोनों डेटा आपस में रिलेटेड होते हैं। तो एक्सपोनेंशियली डेटा रिक्वायर्ड होता ही है मॉडल को ट्रेन करने में। बट अगर दो फीचर्स को आप अलग अलग करके उनको एडिशन करते हो तब एक्सपोनेंशियलिटी का जो फैक्टर होता है वो हट जाता है। इसलिए जो दूसरा हमारा मेथड होता है वो होता है फीचर एक्सट्रैक्शन, जो क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा इतने सारे फीचर्स हैं, मैं देखूंगा कि इनमें से ये सारे आपस में रिलेटेड तो हैं बट मैं इनको अलग अलग करके ऐड कर सकता हूँ, कि ये वाले मॉडल में मैं 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन आपस में रिलेटेड है बट ये एडिशन में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि तीसरी कंडीशन दूसरे से सेम थी या दूसरी पहले से सेम थी या रिलेटेड थी या फिर डिपेंडेंट थी, तो मैं उनको अलग अलग करके अलग अलग फीचर्स बना के सम कर लूंगा। इससे मुझे कम डेटा देना पड़ेगा, कम डेटा देना पड़ेगा, लेस हार्डवेयर फीचर्स मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। 4 GB रैम की बजाय 2 GB रैम में ही काम चल रहा होगा और मॉडल अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा और कंडीशंस हम ज़्यादा लगा सकते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि फीचर सिलेक्शन और दूसरा हो गया फीचर एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जिसमें हम अपने जो डेटा होगा डेटा को अलग अलग कर लेंगे, फीचर्स को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट। और जो मेजर जैसे मैं बता रहा था कि फीचर सिलेक्शन में जो इंडस्ट्रियली यूज करते हैं वो क्या होता है, RFE होता है, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। फीचर एक्सट्रैक्शन में भी टाइप्स होते हैं, मतलब टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। उसमें पहली होती है मोस्ट फेमस PCA। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। मतलब मैं समझाता हूँ, ये मतलब नहीं, फुल फॉर्म थी। तो PCA मतलब क्या कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और दूसरा होता है LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। एक और होता है TSNE। ऐसे दो तीन फीचर्स हमें टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। बट हम जनरली कौन सी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। कोई आया, सुमन्यु आप वापस आ गए, अब आप सुन पा रहे हो? यार क्या बनता है यार ये, सुमन्यु कैन यू हियर मी? इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा यार, ये क्या बंदा है, आता है जाता है आता है जाता है, पर आता डेली है। पक्का इसने बॉट बनाया होगा और बॉट में लगता है अब एरर आ गया, फिर आ गया बॉट। सुमन्यु आपने सच में बॉट बनाया है? चलो इसको मैं कॉल करके पूछूंगा इसने बॉट बनाया क्या है। चलो ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि PCA, जो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, उसमें एक बेस्ट टेक्निक होती है PCA, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। अब PCA होता क्या है, तो PCA का जो मेन काम होता है वो हमारा क्या होता है एल्गोरिथम का, कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है ना उसको ये क्या करेगा, नए नए सेट बना देगा,
और वो सेट कैसे होंगे, उनमें कोरिलेशन नहीं होता। यानी कि मैंने डेटा दिया, उस डेटा को नए सेट तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि अगर नए सेट नहीं बनाएंगे तो जो उसकी कैटेगरी है फीचर एक्सट्रैक्शन की वो तो हो ही नहीं सकती। तो फीचर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, नए सेट हम बना रहे हैं या फिर नए फीचर्स हम बना रहे हैं एक ही डेटा सेट से। बट कैसे बनाते हैं पीसीए में, कि जो लीनियरली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। कोरिलेशन का आपको मतलब पता है ना, आई गेस मैंने बताया कोरिलेशन। कोरिलेशन जल्दी बोल दो यार, इतना शर्माया मत करो, माइक को बोलो कोरिलेशन क्या होता है। यार मैं नहीं खेल रहा यार, कोरिलेशन क्या होता है जल्दी बताओ यार। सिमरत रफराज, सुमन्यु बॉट, कोरिलेशन क्या होता है यार, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, कोरिलेशन क्या होता है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कोरिलेशन। मुझे अगर डिप्रेशन हो गया ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं केस करना है तुम दोनों पे। जल्दी बताओ कोरिलेशन क्या होता है। चैट भी खोल रखा है, यहाँ पे भी लिखोगे तो दिखेगा। टू वेरिएबल है रिलेटेड, रिलेटेड बाय विच एक्सटेंट, कौन सा एक्सटेंट। ये क्या हुई आधी बात। एक मिनट ना। हाँ बोलो जल्दी, कोरिलेशन क्या होता है। आज तो नहीं बढ़ना मैं आगे, कोरिलेशन बताओ, यहीं क्लास एंड करूँगा। भले गूगल करके बताओ बट कोरिलेशन बताओ। ऐसे तो नहीं चलना, क्योंकि ऐसे अगर दो चार वर्ड ही होते हैं इसमें वो भी भूलते जाओगे तो मैं पूरी थ्योरी पढ़ क्यों रहा हूँ, सीधा आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। बोलो जल्दी जल्दी, कोरिलेशन क्या होता है। रिलेशन डिपेंडेंस किस पे, ये तो बताओ। अगर दो वेरिएबल में कोरिलेशन बता रहा हूँ मैं, अगर एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन निकालना है तो क्या निकालेंगे। रिलेशन मतलब क्या, एक वर्ड होता है, वो वर्ड यूज कर पा रहे हो आप, मतलब ढूंढो। रिलेशन तो है ही, कोरिलेशन में कहीं ना कहीं रिलेशन तो है ही, बट कोरिलेशन क्यों। तीन में कोरिलेशन हो सकता है, तीन वेरिएबल में। देखो ये छोटी मोटी बात है, मैं थोड़ा दिमाग से सोचा करो, क्योंकि अगर ये बात फंस गई तो पूरा प्रोग्राम समझ नहीं आने वाला। क्योंकि जितने भी अच्छे डेवलपर्स होते हैं ना, उनका पहला काम होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर ना करके क्लियर रखना, वरना हमारी एल्गोरिदम कभी ढंग की नहीं बन पाती। ठीक है, ये देखना आप, मैं तो नहीं बताऊंगा कि अगर कोरिलेशन में दो में बनाता हूँ कि तीन में बनाता हूँ। कॉमन सेंस वाली बात थी, हम वापस आ जाते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, तो हाँ पीसीए क्या करता है, पीसीए विल ट्रांसफॉर्म आर ओरिजिनल डेटा इनटू द न्यू सेट, या फिर आप बोलो कि न्यू फीचर्स, मतलब फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम और बाय यूजिंग एन फॉर्मूला ऑफ लीनियरली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। लीनियरली मतलब y इक्वल्स टू एक्स, अनकोरिलेटेड मतलब y x पे डिपेंडेंट नहीं है। अब दो पे तो मैं बता रहा हूँ है, पर तीसरे पे क्या होगा मुझे नहीं पता, खुद देखना है आपको। तो लीनियरली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स ढूंढेगा ये, कि कहीं पे भी ना x इक्वल्स टू टू वाई लिखा होगा, ना कहीं पे x इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री लिखा होगा, ना कहीं पे y इक्वल्स टू टू एक्स लिखा होगा। तो ऐसे ये दो वेरिएबल ढूंढेगा और उनका एक नया सेट बनाएगा। अब इसको जितना कहने में आसान है, उस कहने में आसान को करने के लिए मेरे को चार पांच फॉर्मूले लगते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सबसे पहले जो उसका टास्क होता है, इट विल कैप्चर आर मैक्सिमम वेरिएंस। कोई भी जो डेटा होगा उस डेटा में सबसे पहले देखेगा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और एक बार इसको पता पड़ गया तो फिर ये उस डेटा सेट को अलग रख लेती है एल्गोरिथम, ये पीसीए फॉर्मूला या फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। बाय द वे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है, वो लीनियर कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि पीसी इक्वल्स टू लीनियर, नॉट कोरिलेटेड, लीनियर अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर लीनियर अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, और इसका टास्क क्या होता है, मतलब एक और टास्क पीसीए का, कि इट विल कैप्चर आर मैक्सिमम वेरिएंस। नाउ इसके लिए हमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उन सब में पहला फॉर्मूला होता है डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए।
मीन निकालने का। मतलब जो मीन हमारे पास आया, मतलब पीसीए निकालने से पहले, बिफोर अप्लाइंग द पीसीए, हमें एक डेटा सेट जो हमारा होता है उसको हमें नॉर्मलाइज करना होता है। क्यों? क्योंकि सारे फीचर्स जितने भी हैं, सारों के सारों की हमें एक इंपॉर्टेंस पता पड़ जाए, और वो सारी इंपॉर्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। इंपॉर्टेंस मतलब क्या, कि हमें पता पड़ जाए कि कौन से डेटा सेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, और कितनी जगह वो रिलेटेड है। पता पड़ रहा है एक डेटा सेट हमने हटाया और उसके चक्कर में 10 और डेटा सेट खराब हो गए, या फिर एक फीचर या फिर एक वेरिएबल मैंने हटाया, उसके चक्कर में आधा डेटा हमारा खराब हो गया क्योंकि वो आधी जगह रिलेटेड था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को, और नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसमें एक ओरिजिनल डेटा सेट बनाते हैं, जिसको सॉरी एक डिफरेंट डेटा सेट बनाते हैं ओरिजिनल डेटा सेट से, और उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स हमारा ओरिजिनल डेटा, म्यू हमारे जितने भी फीचर्स होंगे सबका क्या होगा, मीन। मतलब सारे फीचर्स का आप मीन निकाल लीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं किसके लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, कि सारे डेटा की इंपॉर्टेंस पता करने के लिए, कि पता तो पड़ जाए कौन सा डेटा कितनी बार और कहाँ कहाँ है। ठीक है, दूसरा होता है कि इसमें जो अभी मैं बोल रहा था कि कोवेरियंस एक मैट्रिक्स बनाना। कोवेरियंस इज द वेरिएंस, पता है ऐसे कोवेरियंस हो गया दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, तो ये कोवेरियंस क्या करेगा कि हमारे जो दो फीचर्स हैं, वो दो फीचर आपस में कितना रिलेटेड है वो पता करने के लिए, कि एक्स और वाई अगर अगर रिलेटेड हैं, या फिर अगर रिलेटेड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अगर रिलेटेड पता पड़ जाएगा तो रिलेटेड नहीं है वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये पता करेगा कि अगर एक्स और वाई रिलेटेड हैं, अनकोरिलेटेड है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, बट स्टिल अगर वो रिलेटेड है तो उनका वेरिएंस फाइंड करेगा दोनों का। फॉर्मूला इसका भी होता है एक्स आई माइनस एक्स बार। मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, एक्स आई माइनस ऐसे मत समझ लेना कि मुझे याद है। ठीक है, वो तो आप समझते रहो, कोई पता होगा। कुछ तो भी होता है इसका फॉर्मूला कि समेशन 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, और डिवाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का इनवर्स ट्रांसफॉर्म, या फिर ऊपर ले आओ तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि जो एक्स आई है वो हमारा क्या है, डेटा सेट्स हैं, जितने भी डेटा सेट है, एक्स बार क्या हो गया, मीन हो गया, माइनस करो, समीशन करो, मल्टीप्लाई कर दो। कुछ तो भी होता है, इससे हमें मिलता क्या है वो बता देता हूँ। मिलता है इससे कि हमें दो, अगर हमारे कोई फीचर्स हैं या फिर वेरिएबल्स है, वो आपस में कितना रिलेटेड है, ये हमें उससे मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पहला हमने टास्क क्या किया, पहले हमने जितने भी डेटा था हमारा उस सबको स्टैंडर्डाइज कर लिया। स्टैंडर्डाइज करने के बाद हमें उन सबकी इंपॉर्टेंस पता पड़ गई। इंपॉर्टेंस मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, कहाँ कहाँ है वो। दूसरा हमने किया कि अब डेटा का हमने कोवेरियंस कंप्यूट किया। वो कोवेरियंस कैसे कंप्यूट किया, कि दो फीचर्स हैं वो आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, अगर रिलेट कर रहे हैं तो कितना रिलेट कर रहे हैं, या फिर वो दोनों आपस से कितना दूर दूर है, मतलब कितना वेरी कर रहे हैं। उन दोनों को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था वो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपने ये पढ़ा ही होगा, आपस से आता है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पढ़ा है क्या? फर्स्ट ईयर में तो शायद नहीं पढ़ाते, सेकंड ईयर में तो पढ़ा ही देते हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। सुना है क्या कभी नाम, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स? नहीं सुना? अब ये नहीं का थम्स अप है कि हाँ का थम्स अप है? नहीं वाले में ऐसे थम्स डाउन करा करो। अच्छा सुना है, सुना है। लुक, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसलिए हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। लोग पूछते हैं कि भाई क्यों फिजूल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही, कहाँ हमें यूज़ होने वाली है। एक्चुअली पढ़ाई इसलिए जाती है क्योंकि हो सकता है भविष्य में जाके आप मशीन लर्निंग पढ़ो तो आपको पता हो, इसलिए वो पढ़ाई जाती है। मीनिंगफुल सारा कुछ होता है, भूल के भी मत सोचना कि आपको डिग्री में कुछ बताया जा रहा है और उसका कोई मीनिंग ना हो। हमें कितना फ़र्क पड़ता है वो अलग चीज़ है, हमें घंटा फ़र्क सॉरी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या उससे वैल्यू है, बट हर एक टॉपिक का कहीं न कहीं रिलेशन होता है।
और वो रिलेशन ऐसा होता है कि कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इफ आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मुझे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स नहीं पता है, तो मैं आगे जाके कहीं पे भी कोई भी एल्गोरिथम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आइगन वैल्यूज के बिना तो मैं यही नहीं बता सकता कि डेटा कंप्रेस कैसे कर लूँ, क्योंकि आइगन वैल्यूज ही हमें बताते हैं कि डेटा कैसे रिपीट हो रहा है, कौन से डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, एक रिपीटेंस, एक हमें प्रॉपर्टीज बताते हैं। ठीक है, खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लासेस ढंग से लेने लग जाओ, क्लास के नोट्स बनाओ अपनी जो रेगुलर चलती है, बट ऐसे दो चार टॉपिक हमें बाद में पढ़ने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का यूज करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं वो फॉर्मूला आप देख लेना, छोटा सा फॉर्मूला होता है, नहीं छोटा सा नहीं होता है, बट जो इंपॉर्टेंस पता करने का फॉर्मूला होता है वो छोटा सा होता है, वो होता है ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या हुई, लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि न्यू फीचर कितने हैं, या फिर कि हर एक की ना इंपॉर्टेंस कितनी है, कि अगर मान लो चार मैंने फीचर्स लिए ए बी सी डी, और चार में बी जो फीचर है वो ए के लिए भी डिपेंडेंट है, सी के लिए भी और डी के लिए भी, तो बी क्या हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला। ये कैसे पता पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, जितनी ज्यादा आइगन वैल्यूज हाई होगी, फॉर एग्जांपल हायर द आइगन वैल्यूज, उतना ही हमारा वेरिएंस क्या होगा, ज्यादा होगा। वेरिएंस ज्यादा होगा मतलब क्या, उतनी बार वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा पूरे डेटा सेट में, ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। आ रही है समझ में, कि आइगन वैल्यूज जितनी निकल के आएगी ना, अगर आइगन वैल्यू किसी की ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स वो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे एक और होता है फाइनल, कि प्रिंसिपल कंपोनेंट अब कैसे फाइंड करें। प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए जो आपने ऊपर लैम्डा की वैल्यू यानी आइगन वैल्यूज निकाली, उसमें से जो आइगन वेक्टर बनेंगे, अब आइगन वेक्टर कैसे, मतलब कि आइगन वैल्यूज जो होंगी ना, अरे यार अब आप लोग अगर बस मुझे थम्स अप कर दो अगर किसी ने आइगन वैल्यूज पढ़ा है तो, क्योंकि वरना बिना आइगन वैल्यू समझाए तो मैं ये टॉपिक नहीं समझा सकता कि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से रिलेटेड कैसे होते हैं। आप एक काम करना, पढ़ा है सिमरत, पढ़ा है, सच में पढ़ा है, चलो फिर ठीक है, समझ आ रहा होगा। अफराज आप एक बार देख लेना, सुमन्यु बॉट, आप अगर ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे हो तो नोट कर लेना, और अगर आप खुद सुन रहे हो सुमन्यु वापस से, कैन यू हेयर मी, सुमन्यु कैन यू हेयर मी, हाँ सिमरत बोलो, कुछ बोल रहे थे सिमरत, ले एवी हैंड रेज कर रहा है, चलो ठीक है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, बॉट का रिप्लाई कर रहा है, ओके, इसने कुछ चैट में लिखा है, फॉर correlation of n variables shouldn't one variable be related to n minus one variable simultaneously। अफराज ये आप रिपीट कर, मैं फ्लो से बाहर निकल गया हूँ, तो आप आपको माइक ऑन करके बता सकते हो आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर ये कोरिलेशन के रिलेटेड था ये। मतलब क्या, सर आपने बोला ना कि दो से ज्यादा का हो सकता है कोरिलेशन के, नहीं अगर अब नहीं कोर वो तो आज डिस्कस नहीं करना, वो कल डिस्कस करेंगे। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में कुछ है तो बताओ। सर वो पढ़ा है मैथमेटिक्स में, बस तो वही, सिंपल। हाँ बस मतलब पास करने के लिए पढ़ा, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तुमने उसमें पीएचडी करने के लिए पढ़ा, बट उतना भी बहुत है, बस नाम सुना होना चाहिए, क्योंकि नाम सुना होता ना तो चीजें ना दिमाग को ऐसे हिट नहीं करती बहुत गंदा, ये क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट नाम ना सुना होता है ना, तो ये होना ही होना है, बट नाम सुना होगा, चलो हाँ कुछ तो है, मैंने पढ़ा हुआ है। वो हमें फेक होता है, हम निकाल नहीं सकते अभी एक की भी आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर, बट फेक होता है, बट ठीक है, सेटिस्फाइड हो सकते हैं, फेक ही सही। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइगन वेरिएंस निकालना है, सॉरी आइगन वेक्टर निकालने हैं, और आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं उनकी, जिससे हमें पता पड़ जाएगा जितनी ज्यादा आइगन वैल्यू होगी उसकी उतनी ही ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी। लेकिन अब प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालने के लिए, पीसीए के लिए, सबसे पहले मैं जो आइगन वैल्यूज होंगी उनके हिसाब से आइगन वेक्टर्स को शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट कैसे करेंगे, जितनी ज्यादा आइगन वैल्यूज है उसको ऊपर रखेंगे, फिर धीरे 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 फाइनली लो, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनको शॉर्ट करते हैं, किसको, आइगन वेक्टर्स को।
आइगन वेक्टर को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी आइगन वैल्यू की तरह, जितनी उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से शॉर्ट करते जाएंगे। अब ऊपर के हम टॉप कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, और टॉप कंपोनेंट्स अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो वैल्यू भी कौन देता है, हम ही देते हैं। इट इज अप टू अस कि मैं कितना अच्छा डेटा सेट बनाना चाह रहा हूँ या अपना मॉडल बनाना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से मैं इंपॉर्टेंस डिसाइड करूंगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको इनिशियली बोल रहा था कि हमें बताना पड़ता है कौन सा है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इनिशियली के कंपोनेंट्स में सेलेक्ट करूँ, के इज रैंडम नंबर, के कंपोनेंट्स में सेलेक्ट करूंगा, सारे हाईएस्ट टू लोएस्ट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स रखने के बाद मैं ऊपर के सिलेक्ट करूंगा और उनका मैं वेरिएंस रेशियो निकालूंगा। वेरिएंस रेशियो मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किए 10, तो उन सबको मैं क्या करूंगा, पहले के लिए वेरिएंस रेशियो निकालूंगा लैम्डा 1 के लिए, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टिल लैम्डा 10, जो उसकी आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ होता क्या है कि मान लो ये तो हो गया कि फॉर्मूला, इससे हमें कुछ काम नहीं होता, बट प्रिंसिपल कंपोनेंट में मतलब इससे जो वैल्यू आएगी, जो वेरिएंस रेशियो आएगा, अगर वो 90% से ज्यादा है तो होगा क्या कि टू कंपोनेंट्स होंगे, उनको हम रख लेंगे, अगर 90% से कम है तो हम उन कंपोनेंट्स को हटा देंगे। तो इससे हमें फाइनल हमें क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट मिल जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगे वो हमने जब वैल्यू सिलेक्ट की कि हमें कितने में से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालने हैं, वो हमें पता पड़ जाएगा, और फाइनली इससे फीचर्स जनरेट हो जाएंगे, पूरा डेटा सेट भी इससे हमारा हो जाएगा, और जो डायमेंशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ अब प्रिंसिपल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, और उसके बाद के जितने भी फीचर्स होंगे उन सबको हटा दिया जाएगा। इससे हमारा डेटा सेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा एक फीचर एक्सट्रैक्शन का एल्गोरिथम ऐसे काम करती है। और रेट 857। अब देखो मैं सीधा आ जाता हूँ कोड पे, इसमें बस एक चीज और हो जाती है कि मान लो एक और फॉर्मूला होता है, बेसिकली इट्स स्टेप्स, पांचवा स्टेप्स इसमें होता है कि जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करने का, जो डेटा आता है अब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। डेटा कहाँ से आता है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट लास्ट में निकल के आएगा, वी विल मल्टीप्लाई दैट बाय सिलेक्टेड आइगन वेक्टर्स, जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं, मतलब जितने की हम, क्योंकि आइगन वेक्टर एट द एंड ये हमने वेरिएंस की हेल्प से निकाला था, तो हमें पता तो पड़ा कि एक बार 8 बार रिपीट हो रहा था, हमने तो उसको एक मान के चला है, बट अब डेटा बनाने के लिए वापस से उसको 8 बार तो लिखना पड़ेगा ना। तो फाइनली हम जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलेक्टेड आइगन वेक्टर से, जितने हमने ऊपर के सिलेक्ट किए थे तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें जो डेटा सेट मिलेगा फाइनल, वो होगा हमारा जिसपे हम क्या कर लेंगे, जिसपे हम लेयर्स कम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डेटा सेट लिया था 100 का, उसमें मैंने आइगन वेक्टर्स बनाए थे 10, तो अब जो मेरा ट्रांसफॉर्म डेटा सेट होगा वो होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10, नंबर्स नहीं होते, मैं बस बोल रहा हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाई 10। 100 क्या होगा, ओरिजिनल डेटा सेट, 10 क्या होगा, आइगन वेक्टर्स हमने जितने ऊपर सेलेक्ट किए थे वो, और इसके बाद जो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि आइगन वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय डेटा सेट। उसके बाद हमें मिल जाता है ट्रांसफॉर्म डेटा सेट। जो ट्रांसफॉर्म डेटा सेट क्या करेगा, हमारे लिए लेयर्स जो कम हुई हैं उन पे एल्गोरिथम लगा के देगा। अब हमें पूरा जो डेटा सेट जिस पे हम मॉडल ट्रेन कर रहे थे उसको हम यूज नहीं करेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा सेट हमने बनाया इसको यूज करेंगे, यानी कि 4D से अब हम 2D प्लस 2D पे आ जाएंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 4D हम 2D और 2D पे आ जाएंगे, जिससे हमारा डेटा सेट इंस्टेड ऑफ गोइंग 10 की पावर 10 इट विल बी 10 प्लस 10, ठीक है। अब एक कोड देख लेते हैं जल्दी, इसमें शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन हुई क्या शेयर, क्योंकि मुझे लोगो ही आ रहा है, स्क्रीन तो नहीं दिख रही। करेंगे सी में स्क्रीन वही।
तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है यार, तुम लोग क्यों आ जाते हो क्लास में? मजाक कर रहे हो मतलब कि डिनर विनर नहीं होता? बाकी सारे लोग इतने बिजी हैं यार, मेरे को एक बहाना मिल जाए, जैसे वो होता था ना क्लास कैंसिल तभी करें। 7 PM डिनर, आई सीरियस? सही बात है यार, फिर तुम हॉस्टलर नहीं हो, है ना? आप डे स्कॉलर हो। बोलो हाँ। डे स्कॉलर हो ना आप, सिमरत? तभी 7 PM तो स्नैक्स भी नहीं होते इवनिंग वाले। सही है, बट इट्स गुड टू हैव डिनर अर्लियर। फिर बाद में गैस की दिक्कत नहीं होती है बुढ़ापे पे। लुक, चलो वापस आ जाते हैं अपने कोड पे। पहला रूल, लाइब्रेरीज कौन कौन सी? बड़ी आसान सी है। बस एक नई चीज़ आ गई, जो नई चीज़ मैं एक दिन आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा था, आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस सिर्फ एक हमारा डेटा सेट देगा, जो बताएगा हमें कि ये लो डेटा सेट, इस पर कुछ भी अब आपको एल्गोरिथम लगानी है वो लगा लो, बस इसलिए लोड आइरिस। बाकी जो ये स्टैंडर्ड स्केलर है और पीसीए है, ये दो हमारे डेटा को शॉर्ट करने में और प्रिंसिपल कंपोनेंट हेल्प निकालने में हेल्प करेंगी। बाकी सब तो है ही नॉर्मल। ठीक है। अब सबसे पहला डेटा सेट लोड आइरिस। लोड आइरिस कहीं पे भी लिखो ना, लोड आइरिस मतलब, अब आपको एक और, मैं जितने असाइनमेंट बोलता रहता हूँ कोई नहीं दिखता होगा, बट आइरिस डेटा सेट का असाइनमेंट इसको ना हाईलाइट करो, हाईलाइट। आइरिस डेटा सेट के बारे में आपको जितना पता होगा ना उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आइरिस डेटा सेट इज रियली कूल डेटा सेट। इसलिए आइरिस डेटा सेट क्या होता है, कैसे होता है, कौन इसका करता धरता था, कैसे आया, इसके थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो लोड आइरिस से मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ। डेटा डेटा इक्वल्स लोड आइरिस मतलब कि इस वेरिएबल में मैंने आइरिस डेटा सेट से उठा के कोई डेटा सेट ले लिया, कोई भी डेटा सेट। और कैसा डेटा सेट आता है वो आप आइरिस के बारे में, डेटा सेट के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा। इट्स सच में बहुत ज़्यादा फेमस डेटा सेट। ठीक है। नाउ, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा सेट को लोड कर लिया है डेटा नाम के वेरिएबल में। दूसरा, फिर हम इसमें नॉर्मल सी कहानी डेटा फ्रेम बना रहे हैं, और उस डेटा फ्रेम में डेटा डॉट डेटा लिख रहे हैं। डेटा डॉट डेटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे डेटा का नाम भी डेटा है। कुछ और होता, यानी कि डेटा के ही अंदर एक डेटा लिया है, इसलिए डेटा डॉट डेटा लिखा है, बाकी और कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का नाम ही डेटा लिख दिया हमने, और कुछ नहीं। डेटा वन लिखोगे तो डेटा वन डॉट डेटा हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा, कॉलम्स में क्या रखना है हमें, लेबलिंग क्या रखनी है, डेटा की रखनी है, डेटा डॉट फीचर नेम्स की रखनी है। फीचर नेम्स मतलब क्या, जो वेरिएबल्स के नाम होंगे वो कहाँ से मिलेंगे? आइरिस डेटा सेट में ऑलरेडी सबके नाम हैं वो। और दूसरा, फिर हम जो डेटा सेट हमने लिया है यहाँ पे उसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। बट डी डॉट हेड, आपको याद हो जब हम पांडास पढ़ रहे थे तब हमने डीएफ डॉट हेड का मतलब पढ़ा था, जो इसमें लिखा भी है कमेंट में वैसे तो, कि इनिशियली कुछ रोज प्रिंट होंगी, सारी रोज प्रिंट नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो सारा प्रिंट करने जाएंगे तो हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कोड पे। कॉपी पेस्ट। हेलो, कौन गया? ये जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर लाइब्रेरी यूज की थी, और जब हम स्टेप्स में बात कर रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन करने की, या फिर डेटा को एक स्पेसिफिक, जितने भी फीचर्स हैं सबको ना एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देने की। ठीक है। तो ये पीसीए से पहले अगर हम डेटा को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, तो जो जीरो मीन वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रिपीट हो ही नहीं रहे होते हैं, या फिर उनका वेरिएंस एक होता है, उनको क्या होगा, वो सारे अलग हो जाते हैं। क्या करेंगे कि ऐसा समझो,
क्या एग्जांपल दूं? मैंने एक रैंडम नंबर लिखे हैं, एक लिस्ट बनाई है रैंडम नंबर की, उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 और कुछ नंबर 97 एक ही बार लिखा, 96 एक ही बार लिखा, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसे फीचर्स होते हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ऐसा मैं समझना रहता नंबर्स हैं, बट फीचर्स होते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे जिनका मीन 0 होता है और उनका वेरिएंस 1 होता है, तब तब पीसीए हमारा सबसे अच्छे से काम करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका वेरिएंस जितना ज्यादा कम होगा उतना ही तो समीशन में डिवाइड कम होगा हमारे पास, यानी कि आइगन वैल्यूज इतनी आराम से हमारी निकलेंगी, ठीक है। तो पहले हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस पे लेके आते हैं, बाकी सारा डेटा क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। 10 को 10 बार ना लिख के एक बार लिखते हैं। वो ये हमारा, वो हम कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरी जो है स्टैंडर्ड स्केलर, इसके थ्रू, ठीक है। अब फिट ट्रांसफॉर्म, वही स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किस में यूज करेंगे, इसी में जब हम फीचर एक्सट्रैक्शन करने जाते हैं, ठीक है। जो हमारे डेटा को जो हमने सेलेक्ट किया उसको क्या करेगा, नॉर्मलाइज कर देगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ठीक है। तो ये क्या, कहाँ पे थे हम, ये जो एक तो हो गया स्टैंडर्ड स्केलर जो हमारे जीरो मीन और जीरो वेरिएंस, जीरो मीन और वन वेरिएंस, जीरो वेरिएंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जीरो मीन और वन वेरिएंस वाले स्टैंडर्ड डेटा में बना लेते हैं। और ये जो स्केलर डेटा है वो क्या करेगा, हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर नॉर्मलाइज कर देगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब पता है, ये लो अफराज भी चला गया, इसको कुछ काम आ गया बेचारा। सिमरत नॉर्मलाइजेशन पता है, आगे बढ़ जाऊँ मैं या खत्म कर रहे तो मुझे नॉर्मलाइजेशन देख लेना क्या होता है। चलो ठीक है, थैंक यू। नाउ लुक, अब आ जाता है सीधा पीसीए नाम का जो हमने बनाया है, जो हम अभी देख रहे थे, उसको अप्लाई कर देने का। पीसीए एन कंपोनेंट्स इक्वल्स टू टू, बगल में लिखे कि होता क्या है इसमें, एक मिनट, क्या आ गया ये, हाँ, रिड्यूस टू डी फॉर विजुअलाइजेशन। मतलब क्या कि ये हमारा जो भी फॉर एग्जांपल हमने वापस से कुछ डेटा सेट दिया रेंडमली, उसको जो मैं अभी बोल रहा था कि 4 डायमेंशनल डेटा को ये क्या करेगा, 2D प्लस 2D करता है। तो 4 डायमेंशनल डेटा में से अंदर के कोई दो फीचर उठा लेगा, उन दो फीचर्स को अलग रख लेगा, फिर बाकी के जो बाहर के दो फीचर्स थे उनको अलग लिख लेगा, ठीक है। और और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेटा सेट को रिड्यूस करना होता है। तो ये जो एन कंपोनेंट्स इक्वल्स टू टू लिखा है पीसीए में, इसका मतलब है जो हम वो पढ़ रहे थे ना कि ऊपर के दो वैल्यू उठाने वाला और ऐसा कुछ, ऐसे ही सेम होता है, एन को 2 डायमेंशनल में कर देगा। अगर 6 डायमेंशन भी होगा तो उस 6 डायमेंशन में भी ये क्या करेगा, पहले 2D को अलग करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपोनेंट इक्वल्स टू टू लिखा है। तो ये जो हमारा डेटा सेट होगा उसमें अगर 4 फीचर होंगे, 4 फीचर के अंदर मतलब एक फीचर, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, तो उसमें से 2 लेयर्स अंदर की निकाल के बाहर कर लेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मैक्सिमम वेरिएंस वाली, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम ये दो फीचर उठा लेगा। अगर मेरे पास 4 फीचर्स थे या फिर 4 डायमेंशनल डेटा था या फिर 4 लेयर थी, उसमें से डेटा सेट में से 4D को 2D करेगा, बट मैक्सिमम वेरिएंस वाले को रखेगा, बाकी सबको निकाल देगा, ठीक है। अगर आप 2 की जगह 3 लिखते तो 3D में करता, 4 लिखते तो 4D का 4D रहता, अगर 4D डेटा आपने दिया। और उसके बाद जो पीसीए डॉट फिट ट्रांसफॉर्म जो स्केल डेटा, वो तो है ही हमारा, ऊपर वाला डेटा आ रहा है उसी को हम इसमें वापस से पुट कर रहे हैं। नाउ इतना सब होने के बाद हम इस पीसीएडीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, और उस डेटा फ्रेम में हमने क्या रखना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, उसका क्या होगा, वैल्यू होगा, और उनके कॉलम्स क्या होंगे, PC1 और PC2। PC1 PC2 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट लिए हैं, यानी डायमेंशन दो ही है, यानी सिर्फ वही फीचर्स अब हमारे पास हैं जिनका वेरिएंस बहुत ज्यादा है या फिर जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब
अब पीसीएडीएफ टारगेट, ये मतलब आपको हम पिछले 2-3 बार देख चुके हैं कि दो तो बन गए। अब ये क्या करेगा कि हर एक को ना एक लेबल देना होता है, तो हमने पीसीएडीएफ टारगेट करके डेटा डॉट टारगेट लिख दिया, यानी कि अपने विजुअलाइजेशन के लिए इसकी लेबलिंग चेंज कर दी। ठीक है, अब आ जाते हैं मैट प्लॉट लिखते हैं। अब जल्दी से इसको कर लेते हैं रन। अब इसमें डेटा हमें नहीं पता है क्योंकि डेटा आयरिस से लोड हुआ है, तो कोई भी इसमें रैंडम डेटा होगा, बट उसकी जब प्लॉटिंग होगी तब समझ आएगा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 और प्रिंसिपल कंपोनेंट 2। एक मिनट, इसको रन होने देते हैं। हाँ सिमरत। से कल की क्लास के रिलेटेड है। कल आपने लास्ट में कराया था ना वो पेयर्स एंड ये जो लास्ट में कराया था कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग वगैरह, जिसमें हमने किया था वो, तो उसमें लास्ट में जब आपने कहा था कि वो शायद फिर से करेंगे क्योंकि लेट हो गया था, शायद वो आपने आज कंटिन्यू किया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बट पहले नहीं बोलना था। नहीं, अब मुझे वापस। लगा आप वही कर, नहीं मुझे लगा आप वही कर रहे हैं, क्लास में बच्चे भी भाई कर रहे मैंने हैं। क्या बोल रहे हैं यार, अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ यार, मैं सुसाइड कर लेता हूँ भाई। स्टार्टिंग से मतलब तुम, वो तो एक अलग एग्जांपल था यार, मुझे वो तो मुझे मुझे हमने। नहीं, मुझे डाउट था कि यही कर रहे हैं कि नहीं। मैंने फिर अफराज को भी मैसेज की कि हमने किया, उसने कहा शायद नहीं, तब मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हमने ये नहीं किया, तभी मैंने आपको बोला। ब्रो, इट्स द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पीसीए पढ़ रहे हैं, वो पिछला वाला था जिसमें हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही एग्जांपल जी। ले रहे थे, रियल लाइफ एग्जांपल था। ठीक है, हम्म, अब करेंगे उसको भी, कोलैबोरेटिव वाला था वो। ठीक है, हम्म, करेंगे उसको। ठीक। चलो फिलहाल इसका मैं स्क्रीनशॉट वापस से करते हूँ। आयरिस डेटा सेट एक बार देख लेना, बिना आयरिस डेटा सेट समझे तो फिर ये एग्जांपल किसी काम का नहीं है। लुक, तो कोई तो भी इसने एक टारगेट क्लासेस ली, जो आप कलरिंग के हिसाब से इसने किया है, क्योंकि हमने प्लॉट कलरिंग के हिसाब से किया है। वैल्यूज इसने 0 1 2 लिए हैं और हर एक का एक प्रिंसिपल कंपोनेंट इसने डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब कितने ये जो आपको दिख रहा है ना टारगेट क्लासेस में, जो ना कलरिंग दिख रही है, यानी कि ये वेरिएंस है इसका, कि 2.5 है, कि 5 है, 7 है, 8 है, या जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उस हिसाब से। और हर एक का प्रिंसिपल कंपोनेंट लिखा है। अब इस डेटा सेट को मैं तब तक नहीं समझा सकता जब तक कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि ये तो बस एक डेटा है जो प्रिंट होके आया है, और जो डेटा भी आयरिस के थ्रू हमने लोड किया है, रैंडम डेटा। देखते हैं इसका, हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं पीसीए का, तब समझ आएगा कि डेटा कौन सा हमारे पास बचा शॉर्ट होने के बाद। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। ये अब मैं लास्ट में बता दिया करूँगा कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये अनसुपरवाइज लर्निंग में पीसीए पढ़ा। पीसीए किसमें, ये भी हमने पढ़ा फीचर एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय।